ہے تو پہلے ان کو بولو کرنا بغل پڑے گا. کے بال نوچ کے نکالتے ہو یا شیو کر کے نکالتے ہو؟ ارے بھائی جس کو نالج نہیں تھی وہ لوگ شیو کر لیے تو علماء اس میں وہ بھی نہیں کہتے کہ فرض واجب نہیں ہے. یہ فرض واجب ہے, ابھی تمہارے یہ کو فرض واجب ہے, رسول اللہ کی حدیث یہ فرض معلوم واجب ہے. ہے, یہ میرے فرض بھائی واجب رسول ہے, اللہ کا حکم ہے, ختنہ فرض واجب ہے, فرض واجب ہے, یہ بات بولیے. رسول اللہ کا حکم ہے, ان کا حکم سنت بھی رہ چکا ہے, ان کا حکم جو ہے نفل بھی رہ چکا ہے, سمجھے حکم وہ ہے, اس کے حکم اوپر ہے. حکم جو حکم ہے ہے نا بہت رسول سارے اللہ رہتے کا. ہیں. حکم 5 طریقے کے ہوتے ہیں, ایک سنت, ایک واجب, ایک فرض, ایک جو ہے نا نفل, یہ سب رہتے ہیں. حکم اب آپ حکم جو پہلے حکم مسلمان تھے میرے کو, آرڈر. اچھا آرڈر ہے, رسول اللہ تو نے اس سے بڑا آرڈر تو دیا ہے سنیے کہ سنیے بغل کے بال کو, ایک منٹ رکو, یہاں جی پہ جی 2 چیزیں دیکھو. جب پیوبک ہیئر کی بات آئی رسول اللہ نے کیا کیا؟ شیو کرو, ٹھیک جی ہے, شیونگ دی پیوبک جی ریجن. اور جب بغل کی بات آئی تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ نوچو. بالکل. ہاں, تو ابھی مجھے بتاؤ کہ آپ بغل کے بال نوچ کے نکالتے ہو یا شیو کر کے نکالتے ہو؟ اس سے پہلے بات بتائیے کہ فرض ہے کیا, سنت ہے کیا, نفل ہے, یہ بات بتائیے. کتنا پرابلم میں ڈال دیا میرے مسلمانوں کو رسول اللہ نے. یہ بھی سوچتا ہوگا کیا مصیبت ہے, اگر کل سے میں بغل کے بال جو ہے نوچ کے نکالوں گا تو میرے کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. سنیے سنیے, آپ جو ہے نا مذاق بناتے کوئی رہیے, باقی ایک یہ بات بتائیے مومن لے فرض کے ہے, آ جاؤ, نفل ہے کہ کیا ہے. کوئی, ایک منٹ رکو, ابھی منہ بند کرو. کوئی ایک مومن لے کے آ جاؤ جو یہاں پہ بولے کہ میں رسول اللہ کی اس بات کو مان کے ابھی سے بغل کے بال شیو نہیں کروں گا بلکہ نوچ کے نکالوں گا. میرے رسول اللہ میرے سب کچھ, میرے رسول اللہ میرے سب جی کچھ, میرے رسول اللہ نے جیسا کہا بولیے, ویسا میں کروں گا, میرے رسول اللہ جی نے جیسا بولیے. بتایا میں ویسا کروں گا. میرے رسول اللہ کبھی جی غلط ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں ہو سکتا ہے کچھ چیز نقصان لگے, لیکن میرے رسول اللہ نے اگر بتایا ہے تو اس میں فائدہ ہی ہوگا. اچھا آپ یہ یہ بتا بول رہی کے حدیث میں آرڈر ہے نا, میرے رسول اللہ کے فرض لیے ہے نا. میں جان, ایک منٹ رکو نا یار, میں تم کو موقع دوں گا, جب تم کو بولوں گا نا بولنے کے لیے تب بولنا. میرے رسول بھائی اللہ نے, میرے رسول اللہ کے لیے میں اپنی گردن تک کٹا دوں گا. میرے رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے کہا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے, دی بیسٹ رول ماڈل. رسول اللہ جو کچھ دے لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 2000 لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے میرے خیال سے جو 300-400 مومن ہوں گے, میرا ان سے سوال ہے, کیونکہ یہ بھائی تو جواب دے نہیں رہے, ان کو شرمندگی ہے, ان کو معلوم ہے, لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے بھی ہے دوستو, میرے مسلمان بھائیوں, میری مومناؤ, کیا آپ رسول اللہ کی اس بات کو سن کے ابھی سے اپنے بغل کے بال, ابھی میرا کیمرہ چالو ہوتا تو میں بھی 1-2 نوچ کے دکھاتا آپ کو کہ کس طریقے سے نوچنا ہے. آپ نے بلیڈ سے کاٹ لیا نا اس کے لیے, کیا بلیڈ سے کاٹ لیا ہے؟ بلیڈ سے کاٹنے کے بعد وہاں کے بال سخت آتے, پھر نوچیں گے تو پھر بڑی بڑی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں وہاں پہ تو کیا اسکن کی. تو تمہارے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ایک بار بلیڈ سے کر لو گے اس کے بعد تم نے نوچنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سیدھا نوچنا ہے, سمجھے حدیث کا وہ مطلب, تو یہ تم مردوں کے کیوں لیے نہیں حدیث ہے. نوچتے, نوچ کے کیوں وہی نہیں تو کہہ رہے ہیں, نکالتے؟ فرض ہے, یہ فرض ہے, سنت ہے, کیا ہے مطلب فرض ہے, سنت ہے, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ تمہارے رسول اللہ جی نے جس نہیں, طریقے سے یہ بتائیے فرض ہے, سنت ہے, کیا ہے, وما پہلے وہ بتائیے. آتاکم دیکھو اللہ کہتا جی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جی اللہ کی تو اطاعت پھر کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول جی, تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بالوں کو, بغل کے بالوں کو نوچو. ہاں تو تو یہ فرض تمہارا بول رہے کام وہ یہ کیا نا, بنتا ہے کمانڈ دے رہے. بنا یہ سوال کیے کہ فرض ہے, سنت ہے, کیا ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, یہ سوال کیے بنا تم نے کہنا ہے, اگر رسول اللہ کی بات آئی تو کیا کہنا ہے؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے سنا اور ہم نے فالو کیا. مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا, میں نے سنا, اطعنا, میں نے اس کی اطاعت کی.
तो तुम क्यों घबरा रहे हो जब रसूलुल्लाह ने तुमको नोचने के लिए कहा है बगल के बाल? तो बोलो आज के आपका मैं बेस ही रसूलुल्लाह नहीं क्लियर है, मैं आपका बेस ही नहीं रसूलुल्लाह क्लियर है, तो पहले वो अच्छा क्लियर मतलब करना तुमको पड़ेगा। रसूलुल्लाह की बात नहीं मानना है? मैंने कहा उनकी बात नहीं माना, मेरे ना उनकी बात मेरे को आपको समझाने का है कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं समझे? समझाना नहीं है। अच्छा ये बोल दो कम से समझाना कम ही कि है। अभी से सुनो सुनो सुनो, ये बोल दो अभी से कि भाई जितने लोग देख रहे हैं अगर उन्होंने शेव नहीं किया, एक बार भी ब्लेड नहीं लगाया है, तो वो अब से ब्लेड नहीं लगाएंगे, अब से हम क्या करेंगे, बालों को नोचेंगे। जी, हदीस सबके सामने है, सब सुन लिए। अभी आप आगे बढ़िए, आप इससे क्या क्लेम करना चलिए चाहते हैं सर्कमसिशन ओके के चलो बारे में? आगे बढ़ते हैं। गाइस एक तो क्लियर हो गया कि ये मोमिन के बस की बात नहीं कि अपने रसूल की बात को फॉलो करे, ये अपने बालों को नोचना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को मालूम क्योंकि है ये फर्ज कि अगर नहीं है। यार रुक जा यार, हर किसी को मालूम है कि बगल के बाल अगर नोच के निकालेगा तो उसका क्या हाल होगा, वो फोड़ा आ जाएगा उधर, फोड़ा फोड़ा। तो ये मोमिन हजरात फोड़ा लेना पसंद नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की इस बात को लोग फेंक देंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई, नाक में फोड़ा क्यों नहीं आता फिर लोगों के? नाक में तुम फोड़ा क्यों क्या नहीं आता जब वो सुन्नती नोचते बनोगे? तो? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि खतना कराना जो है ये फितरत में है, जी तो तुम कह रहे हो कि रसूल ये जो सरकमसिजन है, फीमेल जी सरकमसिजन है, ये इस्लाम का जी हिस्सा नहीं है। जी, क्योंकि ये मर्दों के लिए हदीस है। ये किसने बोला है मर्दों के लिए हदीस है? बगल नोचना ये मर्दों के लिए हुक्म है, और यहाँ तक कि ना औरतों के लिए अलग से हदीस आई है। और ये जो आप कहाँ है क्लेम कर रहे हो बताओ, ना, आप मेरे को पहले बताओ सुनिए सुनिए बताओ सुनिए। बताओ अच्छा अच्छा, एक मिनट। बताओ। आठ के सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, प्यूबिक हेयर, जेरे नाफ के नीचे के बाल, और क्या कहते हैं, आर्म पिट यानी खतना। बगल के बाल, इसके जी लिए अलग से अल्लाह के रसूल ने बताया है कि औरतों तुमने अपने बगल के बाल को शेव करना है और नीचे के बाल को शेव करना है। हदीस पेश करो। जी जी, इससे साफ मालूम पड़ता है आप जो है ना हदीस बीच बीच में जो उठाते पढ़ते, आपको लाइन से हदीसों हदीस का पेश तवातुर नहीं करो, मालूम। अभी अभी यहाँ वहां वही की मैं बात कह रहा नहीं। हूँ। सुनिए सुनिए, मेरे और आप में क्या बड़ा फर्क है बताओ? मैं नबी के ऊपर कोई झूठी बात नहीं गढ़ूंगा, और आप बिंदास गढ़ेंगे आपको एक्सपोज अभी करने का गढ़ इसके लिए। लिए हो तुमने, अच्छा, अल्लाह गढ़ के लिया मैंने। रसूल पे तुमने, और अल्लाह के रसूल की साफ साफ हदीस है कि जिसने जानते बूझते मेरे ऊपर कोई बात गढ़ी उसका ठिकाना हाँ हाँ, जहन्नम। तो मेरे को तुमने खौफ है, एक मैं नहीं बात गढ़ी गढ़ूंगा। कि ये जो मैं नहीं बात है, गढ़ूंगा। सुनो, तुमने ये बात कही, तुमने एक बात गढ़ी कि ये हदीस सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए जी अल्लाह के रसूल ने अलग से हुक्म दिया है कि बगल के बाल को नोचना नहीं है बल्कि शेव करना है, और उसके जी जेरे नाफ के बाल जो है उसको भी शेव करना है। ये हदीस पेश करो पहले, नहीं तो तुम जी, झूठे। देखिए, बड़े बड़े मुहद्दिस को भी टाइम पे कभी कभी जो है नंबर याद नहीं रहते, क्या उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है? ये बात मुझे बताओ बस। मतलब तुम्हारे पास ये अभी बात बताओ। दलील नहीं है? जी, मैं भूल गया वो कौन सा नंबर था उसका, मेरे को सब नंबर याद रखना जरूरी भी नहीं है। 5 मिनट देता हूँ, जाके सर्च करके आओ, मेरे पास दूसरे मोमिन हजरात है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। भाई भाई, उससे पहले मेरा थोड़ा जवाब दे दो। खतना फर्ज है, सुन्नत है, क्या है आपके नहीं हिसाब नहीं, से? खतना फर्ज सुन्नत नहीं, ये बात हुई थी कि आपके रसूलुल्लाह इसमें इन्वॉल्व है क्या नहीं है। मैंने एक हदीस पेश नहीं की, है, आपका वो कहना है कि सिर्फ सब कमजोर हदीस है कमजोर हदीस वो। की बात नहीं है, यहाँ तुमको मैंने सही बुखारी की हदीस बताया हूँ, तुमने पेश करना है। तुमने कहा कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, इसकी तुमको दलील लाना है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। उस पर तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल ने अलग से बताया है कि औरतें जो है अपने बगल के बाल शेव करेगी, और उनके जो नीचे के बाल है उसको भी साफ करने का जिक्र आपने बताना है। ये चीज आपको 5-10 मिनट का टाइम है, लेके आइएगा, और जी, अगर मेरे पास आप 5 नहीं मिनट लेके आने का आते, टाइम नहीं है। हाँ जी, मेरे को लेट हो रहा है, थोड़ा नेट भी कम है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सूर्य निसा की 119 में लिखा है नहीं कि चाहिए, ना नहीं अल्लाह चाहिए, वो शैतान है ना। नहीं चाहिए, आपके सूर्य निशा नहीं चाहिए, आपसे हदीस चाहिए, आपने क्लेम किया। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे अल्लामा, हमारे मुफ्ती, इमाम मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन, एडम सीकर साहब। वेलकम एडम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है रसूल अल मुर्तदीन? तबीयतें कैसी हैं आपकी? काफी लेट हो गए आज आप। जी, और आपने हमारे ऊपर एक वो भी लगा दिया, ऐसी बात बता दी जो बताने के काबिल नहीं है।
हमने कहा कि लेट होने की वजह क्या हो सकती है। हमने फिर सोचा, फिर बहुत सोचा, फिर बहुत सोचा। हमने कहा हाँ भाई गुस्ल ही फरमा रहे होंगे, ओए बिल्कुल होए उसी होए होए। तरीके से जिस तरीके से हजरत अली करमुल्ला वजहो एक दिन खुमस का माल लेके आ रहे थे, तो मोहम्मद साहब के पास नहीं पहुंच सके टाइम पे। वो क्यों नहीं पहुंच सके? तो एक शख्स जो है मोहम्मद साहब के पास पहुंचा, उसने कहा पता है आपको अली क्यों नहीं आया? अली इस वक्त गुस्ल फरमा रहा है क्योंकि वो खुमस के माल की 2 बच्चियों को डिंगी डिंगी कराया है। तो हमारे नबी ने फरमाया बेशक उसके पास खुमस के ऊपर इससे भी ज्यादा हक था, यानी 2 की बजाय 4-5 के साथ भी कर लेता तो कोई मसला नहीं था। तो हमने कहा कि सुन्नत पे अगर अमल करते हुए आप अपनी फीमेल के साथ डिंगी डिंगी फरमा रहे होंगे तो गुस्ल करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से आप लेट हो गए। इस वजह से हमने तो सोचा था, क्या हम गलत थे या सही थे वो पता नहीं, लेकिन हमने अपनी सोच और सुन्नत तरीके के ऊपर बात की थी साहिल भाई। आपने क्या किया? अभी जो हमारे मोमिन भाई आए थे, इन्होंने एक बड़ा क्लेम कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा अल्हम्दुलिल्लाह कि दलील दे अपनी बात की, तो मोमिन भाई कहते मेरे पास दलील नहीं है, मुझे याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मोमिन भाई से मैंने ये भी सवाल किया, और आपसे भी सवाल है कि जब आप मोमिन थे तो बगल के बाल को नोच के निकालते थे या शेव करके निकालते थे? सर मैं तो शेव करके निकालता था, और मेरे पास उसका जवाज भी है। जो इन्होंने जवाज दिया वो एक स्टूपिड जवाज है, ठीक है। हाँ। हम शरा के मुताबिक चलते हैं, और हम जो है ये जो इस्लामिक 4 मुहद्दिस हैं, ठीक है, इनको एक्सेप्ट करते हैं। मुहद्दिस कह रहा हूँ, क्या कहते हैं यार इनको, इमाम फकीह। शाफी, फकीह इनको हम फकीह। एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इमाम शाफी के मुताबिक अगर आपको ये तरीका बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा है तो आप उसको शेव कर सकते हैं। तो चूंकि हम तकलीद करते थे, तकलीदी हैं, तो हम उनके तकलीद के अंदर उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और करके चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा तकलीदी नहीं है, ठीक है। हाँ। ये साला किस हिसाब से जो है ना इस चीज को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं ला रहा। एक्सेप्ट नहीं कर तो कम से कम बगल के बाल नोचना शुरू कर देना ये, और जितने मोमिन हजरात है वो सारे के सारे बगल के बाल नोचना शुरू कर दे। है कोई रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला कि झूठी मोहब्बत के दावे है? सब झूठी मोहब्बत है, तुम सब झूठी मोहब्बत है। चलो, हम तुम हमारे साथ एक मोमिन जुड़े हैं। ये भाई मोमिन भाई जो है वो अपनी बात की। मोमिन भाई, आप यहाँ बैठने से अच्छा आप जाके वो जो हदीस आपने क्लेम किया है वो जरा ढूंढ के लेके आ जाइए, ठीक है मोमिन भाई? मोमिन भाई, आपको मैंने स्ट्रीम में लिया हूँ, आप हदीस ढूंढ के जी लेके आइए, क्योंकि उसके बिना मैं आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता हूँ। और सर मैंने मैं भी ये भी आपको चाहता हूँ कहा कि फर्ज कौन से सा बंदा है आप जो इस हदीस को कहे कि ये जनरल नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए है। क्योंकि मैं एग्जैक्टली, ये आपको मोमिन भाई बोल रहे बड़े हैं। आराम से 10 बंदे दिखा सकता हूँ, मेजर स्कॉलर्स दिखा सकता हूँ, पुराने भी और नए भी, और इवन इमाम शाफी भी दिखा सकता हूँ, इमाम अबू हनीफा भी दिखा सकता हूँ। लाइक मैं आपको मुजतहिद भी दिखा सकता हूँ, यानी कि इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा भी दिखा सकता हूँ, और आपको लेटेस्ट स्कॉलर भी दिखा सकता हूँ जो अरबिक बोलते हैं। अरबिक उनकी बेसिक जुबान है, वो उन्होंने सीखी नहीं है अरबिक, बल्कि सीखी भी है इवेंचुअली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लिसानुल अरबी के अंदर अबूर हासिल किया है। वो सारे के सारे लोग इस हदीस को जनरल कैटेगराइज करते हैं फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो मुझे ये भी पूछना है कि इंडिया का 2% का इंसान जिसको अरबिक भी नहीं पता, और वो आके बोल दे कि नहीं ये सारे के सारे लोग उल्लू के पट्टे हैं, इनको नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है, ये हदीस सिर्फ मर्दों के लिए है। पहले तो मुझे इस चीज का एक बात बताएं कि एक बंदा कैसे ये बोल सकता है उन सबको रिजेक्ट करते हुए जो लिसान अरबिया के ऊपर अबूर रखे हुए हैं। जी मैं आप जी जवाब दूं? आपने दलील लेके आना है, आपको भी तभी दलील आपका लेकर आना है, जवाब होगा। फर्ज सुन्नत खतना फर्ज सुन्नत है, आपको भी लेके आने का है, समझे? जी नहीं, सर ये आप बिल्कुल इंटरनेट हमारा पे दे रहे नहीं हो टॉपिक नहीं जवाब। इमाम मैं बताया था, नहीं 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 नहीं। बता रहा हूँ, हेलो जवाब देने लगा हूँ। इमाम जी जी शाफी के मुताबिक ये ऑब्लिगेटरी है, यानी कि फर्ज की जी। कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि अगर नहीं अच्छा करोगे तो गुनाह मिलेगा। हेलो, इमाम अबू अच्छा। हनीफा के मुताबिक आवाज आ रही है? ये मुजतहिब है, एक सेकंड वेट करें सर। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक ये मुजतहिब है, यानी कि करना बेहतर है, और मुजतहिब कैटेगरी के अंदर आता है, यानी करना बेहतर है। इट इज अबे आवाज आ लाइक, रही है? यार इसको आ निकाल रही है यार, भाई चौथा निकलवा। भाई आवाज आ रही वाला बंदा है, भाई भाई पागल का आप बच्चा। थोड़ा, आप इमाम अबू हनीफा का क्या बोले?
क्योंकि बीच में वो डंगर बोल पड़ा था इस वजह से, वो इसको मुश्तहिब कैटेगरी के अंदर डालते हैं, इसको बिल्कुल नहीं, फर्ज कैटेगरी के अंदर बिल्कुल नहीं डालते। आप भी एक बार बिल्कुल नहीं रिसर्च डालते। कीजिए, वो मुस्तहिब में नहीं डालते, नहीं। ओके, किस में डालते हैं? वो इसे सुन्नत गैर मौक़दा में डालते हैं, मतलब सुन्नत कराना मौक़दा। मतलब जरूरी। सुन्नत मौक़दा कौन सी? ऐसे नहीं, सुन्नत मौक़दा के ऊपर बात कर लेते हैं, बेहतरीन। अब आप इसको मुश्तहिब में आ जाएगा खुद बखुद ही। सुन्नत मौक़दा वो सुन्नत होती है कि अगर आप कर सकते हैं तो आपने लाजमन करना है, छोड़ने के लिए कोई जवाज होना चाहिए, करेक्ट? क्या क्या क्या? सुन्नत मौक़दा की डेफिनेशन दो। जी, सुन्नत मौक़दा वो होती है जो है ना, मतलब अगर करा बंदा, मतलब कभी कभी छोड़ दे, जैसे नमाज की अगर बातें करे तो फिर वो माफ रहती है। हाँ, कभी कभी अगर रोज कर रहा है तो वो गुनाह में आ जाएगा। सुन्नत मौक़दा अगर रोज कर रहा है गुनाह में आ जाएगा। जी ओके, तो सुन, इसका मतलब है कि अच्छा चले, मैं अब आपकी वाली डेफिनेशन में चलता हूँ, हालांकि ये डेफिनेशन आपने गलत फरमाई है, ठीक है? नमाज में वही है, नमाज के लिए वही है। सुन्नत और सुन्नत मौक़दा में क्या फर्क है? सुन्नत दो तरीके, सुन्नत मौक़दा, एक सुन्नत गैर मौक़दा। मैं अभी आपको समझे? हाँ, गैर मौक़दा जो है वो और सुन्नत मौक़दा में बेसिक फर्क क्या है? सुन्नत गैर मौक़दा को नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई गुनाह नहीं। अगर सुन्नत थैंक यू। मौक़दा को जो है ना नहीं अगर करेंगे ना बहुत लंबे टाइम तक तो फिर उसको अरे अरे गुनाह अरे मिलती है। अरे नहीं, देखा, ये डेफिनेशन ही नहीं बनती, ये इसीलिए ये मैंने बनती आपको है, इसकी तो इसको डेफिनेशन नमाज के ऊपर आप छोड़े, इसको नमाज के अंदर छोड़ के बताइए आप। सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुने जरा। सुन्नत मौक़दा वो होती है जो किसी उज़र के बिना पे आपने की बिना पे ही छोड़नी है, वरना नहीं छोड़नी। उज़र होना अच्छा। चाहिए उसको छोड़ने का, ठीक है? जी जी तो सुन्नत गैर मौक़दा ये है, कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई मसला नहीं है। जी अब आप इसको नमाज के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है? जी लिहाजा आप इसको दूसरी डेफिनेशन के ऊपर डाल रहे हैं। नाउ सुन्नत जी। मौक़दा अगर है, ठीक है, तो मुझे बताएं मुज्तहिद क्या होता है? मुज्तहिद जो कर इज्तिहाद करता है, मतलब वो कुरान ओके, हदीस में से वो निकालता है चलें, फतवे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब मुस्तहिब क्या होता है? मुस्ताहब मतलब करे तो मुस्तहिब अच्छा, की नहीं बात करे तो नहीं हो फिर रही है, अच्छा नहीं। मुस्तहब मुस्तहब। जी जी मुस्तहब करे समझ गया मैं। तो अच्छा है, ना करे तो बुरा मतलब अच्छा, मतलब बुरा गुनाह नहीं मिलेगा उस पे, मतलब बेहतरीन। उसे बोला जाएगा अच्छा, कि करो। अब सुन्नत मौक़दा अगर आप बिला वजह छोड़ दें मुसलसल, जी तो ना इस पे गुनाह मिलेगा? जी, थैंक अगर यू कोई सो वेरी वजह मच। से छोड़े आपके अब हिसाब से। आपने अभी बताया था कि सर्कमसिजन इमाम अबू हनीफा के मुताबिक सुन्नत मौक़दा है, यानी कि जी अगर बिला वजह छोड़ोगे तो गुनाह मिलेगा, करेक्ट? जी जी थैंक यू सो वेरी मच। साहिल, आपको आंसर मिल गए सारे, और सारे लोगों को भी मिल आंसर मिल गया, गए। अभी यानी ये हदीस लेके आएंगे। औरतों का सर्कमसीजन करना जरूरी है, अनलेस अनलेस और अनटिल कोई वजह आ जाए, कोई जवाज आ जाए। ये इमाम अबू हनीफा के कौल है, भाई के मुंह से इंशाल्लाह। निकलवाया मैंने खुद नहीं बोला, हर चीज अब भाई के मुंह से निकलवाई है, अब भाई बदल नहीं सकते इस बारे में। अब इनको हदीस लाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने प्रूव कर दिया इस बात का जो हम कह रहे हैं। जी नहीं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अभी टाइम अगर ज्वाइन ये होता, अभी हदीस थोड़ा नहीं नेट भी आए, कम है। एक हेलो, मिनट, अगर ये अभी थोड़ा हदीस नेट नहीं, कम है, अभी मैं बाद में ज्वाइन होता हूँ, मैं बाद में हाँ, ज्वाइन बाद होता, में अभी थोड़ा जल्दी ज्वाइन नेट भी ज्वाइन कम है। करना। ठीक है, अगर ये जब आएगा जब। साहिल देखिए, पता है क्या बात हुई है अभी देखें, अब ये हदीस लाएं या ना लाएं, क्योंकि वो एक सेपरेट बात हो जाती है। जब उस बंदे ने अपने मुंह से एग्री कर लिया और बता दिया है कि अबू हनीफा के मुताबिक भी ये सुन्नत मौक़दा है, मैं उसके लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि अगर नहीं करोगे तो उसका जवाब होना चाहिए, आपके पास रीजन होनी चाहिए, रीजन होनी चाहिए, फिर नहीं करना, वरना लेकिन आपको ये करना ही तकलीफ ही करना है। नहीं है ना एडम साहब, ये बंदा जो है मुकल्लिद नहीं है, ये इसने ये कहा कि फीमेल सर्कमसिजन ये हराम है। अगर ये हराम साबित नहीं कर, हाँ, इसी हराम वजह से तो कहा। यानी के मुजतहिब जो लोग हैं आपके, जो जो हाँ, आपके, हराम हुक्म दिए। वो हराम हुक्म दे रहे हैं। माशाल्लाह, ये ज्यादा जानते हैं। सर दोबारा पूछ ले, क्या एग्जैक्टली, ये हराम कहते हैं? फीमेल अबू हनीफा को भी झूठा बोला कह रहे हैं उन्होंने, और शाफी को भी। हाँ बिल्कुल हाँ, कंफर्म ये कर आप दो हराम कह मोमिन रहे भाई, हैं फीमेल सर्कमसिजन को। सर्कमसिजन पलट नहीं सकते, रिकॉर्ड है। मोमिन भाई आप स्ट्रीम में हो। भाग गए मोमिन भाई। अब उन्हें भागना मजबूरी था, क्योंकि इमाम अबू शाफी को इन्होंने मान लिया कि उन्होंने इसको जो है हराम काम ओब्लिगेटरी का का है, हुक्म दिया। हाँ, ओब्लिगेटरी का है, और इमाम अबू हनीफा ने सुन्नत मौक़दा का है। तो अब बेचारे से वो कैसे आंसर लेंगे यार? नहीं तो हमको तो एडम साहब, हमको तो ठीक है, हमको इतना मतलब नहीं है इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी से। यहाँ तो हम रसूलुल्लाह से साबित कर रहे हैं हराम काम, इसीलिए सर वजह से मैंने कहा था कि सर अगर